Hello student, welcome back to my channel Fair of Maths Atail Maza. In this video we will see pair of straight line. So dear student, first we will discuss locus and its equation. In geometry, a locus is a set of points satisfying some geometrical condition or conditions, for example circle, ellipse, etc. Next, equation of locus, that is relation between coordinates x and y or algebraic relation between x and y satisfying geometrical condition or conditions. For example, ax plus by plus c equals to 0, that is equation of straight line. Now next, definition of straight line and its equation. A straight line is a endless one-dimensional figure that has no width, or it is just a line with no curves. Now next, general form of equation. We have ax plus by plus c equals to 0 always represents straight line in xy plane, and its slope m is equal to minus a by b, that is coefficient of x upon coefficient of y. Here x intercept is minus c by a and y intercept is minus c by b respectively. Now next we will see combine or joint equation. An equation which represents two lines is called the combined equation of those two lines. For example, 2x plus y equals to 0 and 3x minus y equals to 0. Therefore, its combined equation is given by 2x plus y into 3x minus y equals to 0, etc. Now, next, we have two theorem, that is theorem number 1. The equation u into v equals to 0 represent the combined equation of the lines u equals to 0 and v equals to 0 respectively. Theorem number 2, the combined or joint equation of pair of lines passing through the origin is a homogeneous equation of degree 2 in x and y, that is ax square plus 2hxy plus by y square equals to 0. Now here note homogeneous equation, an equation in which the degree of each term is same. For example, 2x plus y equals to 0, etc. So let's start student exercise 4.1 question number 1. But before that, don't forget to like and subscribe my channel. We have exercise 4.1 question number 1. In question number 1, we have to find the combined equation और joint equation of pair of lines. ऐसा क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1. आपको क्या करना है, कंबाइन इक्वेशन फाइंड करना है. स्लाइड्स पे मैंने आपको बताया कि कंबाइन इक्वेशंस क्या होता है बेटा. कंबाइन इक्वेशंस कैसे फाइंड करते हैं. कंबाइन इक्वेशंस के लिए थ्योरम आपको स्लाइड पे मेंशन किया है, लेकिन आपको सबसे पहले स्ट्रेट लाइन पढ़ना पड़ेगा बेटा, बेसिक करना पड़ेगा. 11th का बेसिक करोगे. व्हाट इज़ स्ट्रेट लाइन, डेफिनेशन मैंने आपको स्लाइड पे बता चुका हूँ, एंड देन उसके बाद में इसका इक्वेशन आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0. ठीक है. सो इतना ही बेसिक नहीं है बेटा, और भी बेसिक है. तो इसके पहले के वीडियो में मैंने कुछ बेसिक कवर करने की कोशिश किया है. यहाँ कहीं तो भी उसका आई बटन आएगा बेटा, तो पहले आप वो वीडियो भी देखें, वो आपको हेल्प करेगा कि कैसे किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करते हैं हम लोग. मैंने डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बताया माइनस ए बाय बी, और इसके पहले के वीडियो में मैंने डेराइव करके दिए है आपको कि कैसे हम लोग माइनस ए बाय बी हमको मिलता है. ठीक है. सो वेरी फर्स्ट आज के लेक्चर में अभी आपको करना है क्या है बेटा, सबसे मेन है कंबाइन इक्वेशन फाइंड करना है. सो आपको दो बातें ध्यान में रखनी पड़ती है. नंबर 1, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. वेरी फर्स्ट, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0. ये मेन इक्वेशन है बेटा आपका. इस चैप्टर में आपको ये इक्वेशन बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है. ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0. अच्छा, मैं आपको एक बात बोलूँ, ये जो इक्वेशन है बेटा आपके लिए नया नहीं है. क्यों नया है? क्योंकि आपने 10th में बेटा इसको ये चैप्टर आपने किया है. आपने 10th में इसको बोला था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, दैट इज़ इन x एंड y. इसको आपने लीनियर इक्वेशन बोला है. ठीक है. तो आपका ये लीनियर इक्वेशन ही है बेटा. ये जो लीनियर इक्वेशन होता है ज्योमेट्रिकली क्या करता है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है. और आपने ग्राफ भी ड्रॉ किया है इसका. ठीक है. आपने ग्राफ भी बनाया है. ग्राफ पेपर पे अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो यू विल फाइंड दैट वी गेट स्ट्रेट लाइन. क्या मिलता है बेटा हमको, स्ट्रेट लाइन मिलता है.
ठीक है। सो ये ध्यान में रखना है आपको कि हमेशा आपका जो लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल इट रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब यहाँ एक और चीज़ नोट करने की है बेटा कि ABC जो होता है ये रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। सो स्लाइड पे मैंने सारा ये आपको लिख के दिया है, आप उसको पॉज करके समझने की कोशिश करें बेटा, ठीक है। तो आपको वो हेल्प मिलेगा। स्लाइड्स प्लस लेक्चर दोनों आपका काम हो जाएगा बेटा। आपको स्क्रीनशॉट भी लेना नहीं है, आपको थ्योरी के लिए टेक्स्ट बुक ओपन नहीं करना है, सारा थ्योरी आपका स्लाइड पे है। जो इम्पोर्टेंट जितना भी पोर्शन है वो सारा मैं स्लाइड्स पे देता हूँ बेटा। हर वीडियो में मैं यही काम करता हूँ। जितना भी आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको नोट करने हैं किसी भी चैप्टर के, किसी भी टॉपिक के, तो मैं स्लाइड्स पे वो मेंशन कर देता हूँ। ओके, तो आप स्लाइड्स को पॉज करके अच्छे से उसको समझें। अगर मेरी बात समझ में नहीं आती तो बेटा उसको पॉज करें, पॉज करके खुद ही पढ़े आप उसको और समझें, ठीक है। तो शॉर्ट में तो मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन करता ही हूँ। सो आपको मेरी बात अगर समझ में वहाँ नहीं आती है, होता है, हो भी सकता है कि मैं वहाँ पर कुछ थोड़ा सा कम ज़्यादा बोलता हूँ, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से उसको पॉज करके आप उसको पढ़ें, ठीक। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1, वी हैव टू फाइंड द कंबाइन इक्वेशन ऑफ दीज टू इक्वेशन। बेटा ये क्लियरली दिख रहा है, ये क्या है आपका स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, इसकी कंबाइन इक्वेशन निकालनी है। तो बहुत सिंपल है कंबाइन इक्वेशन निकालना, एग्जाम में आपको पूछता है। कुछ नहीं करना है बेटा, आपको दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। लेकिन प्रॉपर वे से आपको थ्योरम बोल रहा है। लेट्स सपोज u be the first line, let u be the first line 2x plus y and v be the second line 3x minus y equals to 0 लगाना चाहिए, equal to 0 लगाना चाहिए। Therefore by theorem u into v equals to 0 always represent a combined equation or joint equation of two equations। ये थ्योरम है, मैं नहीं बोल रहा बेटा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जो लाइंस क्या करते हैं, इनका जो प्रोडक्ट है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कंबाइन इक्वेशन और जॉइंट इक्वेशन। देयरफॉर वी कैन राइट 2x प्लस वाई इंटू 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। इसको बोला जाता है बेटा कंबाइन इक्वेशन और जॉइंट इक्वेशन। आपके लेवल पे जस्ट बेटा इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको ब्रैकेट लगा दो, इसको ब्रैकेट इक्वल्स टू क्या ले लोगे, 0। आता कहाँ से है ये थ्योरम से आता है बेटा। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। देयरफॉर ये आ जाएगा बेटा 6x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो वी राइट 6x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको ऐसे ही रहने दो तो कोई इश्यू नहीं है। ये क्या बन जाएगा आपका, ये सिंपली xy बन जाएगा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो जाएगा बेटा xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये है आपका कंबाइंड और जॉइंट इक्वेशन। कितना सिंपल है, जस्ट आपको मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, हमेशा आप बेटा एक चीज़ नोट करोगे, आपके जो आंसर्स आएंगे वो इसी फॉर्म में आएंगे। और इस इक्वेशन को मैंने बोला है होमोजीनियस इक्वेशन। स्लाइड पे आपको मेंशन किया है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y। इसको बोला जाता है बेटा होमोजीनियस इक्वेशन। क्यों इसको होमोजीनियस बोलते हैं, मैंने ये भी आपको मेंशन किया है बेटा। इसकी जो पावर्स है, वेरिएबल्स की पावर्स जो है ये सेम है, सारी टर्म में सेम है। 2 1 प्लस 1 2 वाई स्क्वायर दैट इज़ 2। तो सारी टर्म में सेम पावर है, तो इस इक्वेशन को बोला जाएगा होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन x एंड y। टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट वाला भी बहुत सिंपल है बेटा, फिर इसको u भी अज्यूम कर लोगे। नेक्स्ट वाला भी बहुत सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। जस्ट आपको क्या करना है, फर्स्ट लाइन को u अज्यूम करना है, सेकेंड लाइन को v अज्यूम करना है, और फिर इसके बाद थ्योरम अप्लाई कर देना है। देयरफॉर थ्योरम नंबर 1 है, आई थिंक वो थ्योरम नंबर 1 है। u इंटू वी इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट कंबाइन इक्वेशन और जॉइंट इक्वेशन बोलते हैं बेटा उसको। देयरफॉर so let for second number 2, so very first we consider u is equal to x plus 2y minus 1 equals to 0 and v equals to x minus 3y plus 2 equals to 0. Therefore we have u into v equals to 0 always represent joint equation or combined equation. Therefore
Therefore, we write from the theorem that is x plus 2y minus 1 into x minus 3y प्लस 2 इक्वस टू 0 ओवर, ये है आपका थ्योरम नंबर 1। ठीक है, ये आपके टेक्स्ट बुक में आपको मेंशन किया है। क्या करोगे बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे। अब तो ये बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस 3xy नेक्स्ट प्लस 2x नेक्स्ट आएगा प्लस 2xy माइनस 6y स्क्वायर प्लस 4y, इधर आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दैट इज, इसको प्रॉपर वे में लिख लोगे एक्स स्क्वायर, ये टर्म है बेटा एक्स वाई का, ये एक्स वाई का। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका माइनस एक्स वाई, नेक्स्ट है आपका एक्स का टर्म ले लो, ये आ गया बेटा प्लस एक्स, देन वाई का टर्म है, सो ये आ जाएगा 7y और ये आ जाएगा माइनस 6y माइनस 2 इक्वस टू 0। ये आ गया बेटा आपका रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन। यहाँ अच्छे से देख लेना बेटा, बराबर लिया कि नहीं मैंने, एक्स स्क्वायर लिया है, एक्स वाई में माइनस एक्स वाई किया है, ये हो जाएगा आपका सिंपली एक्स और ये बन जाएगा आपका 3 प्लस 7, ठीक है, माइनस 6 वाई स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। बी रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन ऐसे लिखना चाहिए। क्या लिखोगे, बी रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ u इज इक्वल टू 0 एंड v इक्वल्स टू 0। ठीक है, u इज इक्वल टू 0 एंड v इक्वल्स टू 0, ऐसे आप मल्टीप्लाई करके आपको कंबाइन इक्वेशन निकालना होता है। अच्छा, साथ ही साथ मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, ये जो u इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 है, इसको सेपरेट इक्वेशंस बोला जाता है। ये क्या है, सेपरेट इक्वेशन है। एक्चुअल में फैक्टर्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इनको बोला जाता है सेपरेट इक्वेशन। तो आने वाली वीडियोज़ में मैं उसको कवर करूँगा सेपरेट इक्वेशन को। ओके, सो आज तो हम लोग जस्ट कंबाइन इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं। कंबाइन इक्वेशन क्या है बेटा, फिर आपको एक बार बता दूं मैं। कंबाइन इक्वेशन है आपका u इंटू वी इक्वल्स टू 0। टेक अ स्क्रीन शॉट फास्ट। नाउ मूव ऑन टू थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल बेटा थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का थर्ड एग्जाम्पल है आपका। अब यहाँ आपको पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी और देन उसके बाद इसका कंबाइन इक्वेशन निकालना पड़ेगा। दो एग्जाम्पल में आपको डायरेक्टली इक्वेशन गिवन था, u और v आपको गिवन था। यहाँ बेटा आपको u और v गिवन नहीं है, तो यहाँ आपको u और v बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। क्या बोल रहा है आपको, फाइंड द कंबाइन इक्वेशन पासिंग थ्रू 2, 3 एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या है बेटा, ये पैरेलल है। तो इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है बेटा x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो ये बहुत बेसिक है, ये बच्चों को आना चाहिए बेटा। सो ये 11th का पोर्शन है आपका एक्चुअल में। ये वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा बेटा। अब आपका जो कंबाइन इक्वेशन है, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन और कंबाइन इक्वेशन पासिंग थ्रू, कहाँ से पास हो रहा है बेटा, पासिंग थ्रू 2, 3 एंड पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। किसको पैरेलल बेटा, कोऑर्डिनेट एक्सिस को। सो इस केस में जो इक्वेशन आएगा x इक्वल्स टू 2 and y equals to 3. Therefore, we write x minus 2 is equal to 0 and y minus 3 is equal to 0. So, let u is equal to x minus 2 equals to 0 and v equals to y minus 3 equals to 0. Therefore, required combine equation u into v equals to 0 implies x minus 2 into y minus 3 equals to 0. This implies xy minus 3x minus 2y
प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये मिलेगा आपको बेटा आपका कंबाइन इक्वेशन। बी रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। नाउ मूव ऑन टू लास्ट एग्जाम्पल। लास्ट एग्जाम्पल बेटा आपका है, इसको देखोगे अब आपको इस केस में क्या बोल रहा है, आपका जो कंबाइन इक्वेशन है पासिंग थ्रू कहाँ से पास हो रहा है ये, ठीक है। तो इसको जस्ट हम लोग जल्दी से इसको समझ लेते। आपका जो इक्वेशन है ये पॉइंट 2 3 से पास हो रहा है, सेम पॉइंट से पास हो रहा है, लेकिन अब की बात बेटा ये परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो गिवन लाइन से बेटा इसके स्लोप्स निकाल लोगे। देयरफॉर वी हैव, सबसे पहले आपको काम क्या करना है, स्लोप निकालना है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, वी हैव u इज इक्वल टू ले लेता हूँ 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड v इक्वल्स टू x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो स्लोप ऑफ u सबसे पहले निकाल दोगे बेटा, स्लोप ऑफ u इज इक्वल टू माइनस कोइफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ y, ये आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट इसके बाद निकालोगे स्लोप ऑफ v। तो स्लोप ऑफ v आ जाएगा बेटा माइनस कोइफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ x, ये ऐसे आ जाएगा। तो ये सिंपली आ जाएगा 1/3। ऐसे आपको स्लोप्स निकालने हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, व्हेन स्लोप्स आर परपेंडिकुलर, स्लोप्स क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं। तो स्लोप जो है आपका, ये लाइंस जो है ये परपेंडिकुलर लाइंस है, ठीक है। इट मीन्स ये नॉर्मल है। और नॉर्मल का स्लोप क्या आता है, नॉर्मल का स्लोप हमेशा आप याद रखोगे, नॉर्मल का स्लोप आता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ नॉर्मल इज ऑलवेज -1 अपॉन m आता है बेटा। तो ये परपेंडिकुलर लाइन है, मतलब ये नॉर्मल से, तो नॉर्मल का स्लोप हमेशा -1 अपॉन m आएगा। ये भी 11th का बेसिक है, ठीक है। सो आप क्या करोगे, यहाँ जो स्लोप्स है इसको आप लिख लोगे रिवर्स ऑर्डर में। दैट इज स्लोप ऑफ u बन जाएगा आपका, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन्स है तो आपका स्लोप ऑफ u बन जाएगा 2/3, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, -1/m। इसको उल्टा करोगे, चलो ठीक है मैं आपको करके ही दिखाता हूँ। क्योंकि बेटा ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइन्स है, मतलब ये नॉर्मल है और नॉर्मल का स्लोप आता है -1 अपॉन m, और यहाँ -1 अपॉन m मतलब -1 अपॉन -3/2, दैट इज ये हो जाएगा सिंपली बेटा 2/3 हो जाएगा। एंड स्लोप ऑफ v निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ v क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ v आ जाएगा आपका अगेन माइनस, तो इसको लिखोगे -1 अपॉन 1/3 इज इक्वल टू -3, ऐसे आ जाएगा बेटा 2/3 एंड -3, ये आपके स्लोप्स आ जाएंगे। बस अभी कुछ नहीं, आपको स्लोप पॉइंट फॉर्म आना चाहिए, ठीक है। स्लोप पॉइंट फॉर्म, क्योंकि आपके वो पॉइंट गिवन है, आपको ये पॉइंट गिवन है, स्लोप्स आपने फाइंड कर लिया है। सो आप क्या करोगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ करोगे। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ u निकालोगे आप सबसे पहले, इक्वेशन ऑफ u बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। ये भी बेटा 11th का है, ठीक है। ये भी वाला फॉर्मूला 11th में आपको स्ट्रेट लाइन में गिवन है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। चलो y माइनस y1 कितना है आपका 3 इज इक्वल टू, ये कितना निकाला आपने 2/3, x माइनस 2 आ जाएगा बेटा। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। सो ये आ जाएगा 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, दैट इज, इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करूँ मैं, सो यू विल गेट 2x माइनस 3y, और ये इधर आ जाएगा तो ये +5 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा बेटा। 2x माइनस 3y, ये इधर शिफ्ट होगा +5, ये आ गया बेटा इक्वेशन नंबर 1। u का आपने इक्वेशन निकाल लिया है। सिमिलरली चलो हम लोग इक्वेशन ऑफ v निकाल लेते हैं अभी। इक्वेशन ऑफ v अगेन बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। सो y माइनस y1 ये वही रहेगा, जस्ट स्लोप चेंज हो जाएगा, यहाँ -3 आ जाएगा बेटा x माइनस 2। तो ये सिंप्लीफाई होके y माइनस 3 माइनस 3x प्लस कितना आ जाएगा 6, इसको शिफ्ट कर दो उधर। सो ये आ जाएगा 3x प्लस y, ये इधर जाएगा तो ये -9 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। ये आ गया बेटा आपका सेकेंड इक्वेशन, ओके। अब आप क्या करोगे, टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट, इसको हम लोग
मल्टीप्लाई कर देते तो हमको फाइनल आंसर हमारा मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे निकाला जाएगा बेटा इसको। देयरफॉर नाउ इन नेक्स्ट स्टेप वी टेक द प्रोडक्ट। क्या ले लोगे बेटा, इसका प्रोडक्ट ले लोगे, तो यू विल गेट कंबाइंड इक्वेशन। क्या मिल जाएगा आपको, कंबाइंड इक्वेशन। देयरफॉर रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन, और कंबाइंड इक्वेशन लिखना पड़ेगा ऐसे, कंबाइंड इक्वेशन इज यस 2x माइनस 3y प्लस 5 इंटू, इधर आ जाएगा बेटा 3x प्लस y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। चलो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यू विल गेट 6x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 18x, नेक्स्ट माइनस 9xy, और ये आ जाएगा आपका माइनस 3y स्क्वायर प्लस 27y, अब 5 से करोगे इसको तो ये आ जाएगा 15x देन प्लस 5y माइनस 45 इक्वल्स टू 0। इसको बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते, देन यू विल गेट फाइनल कंबाइंड इक्वेशन। क्या मिल जाएगा आपको, कंबाइंड इक्वेशन मिल जाएगा। देयरफॉर क्या लिखोगे इसको, एक्स स्क्वायर की टर्म पहले लिखोगे, देन इसके बाद एक्स वाई देख लो, ये बेटा एक्स वाई, ये एक्स वाई, तो ये आ जाएगा माइनस 7xy। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद एक्स वाली टर्म देख लो कितनी है, ये है 15x और ये 18x है, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस 3x। नेक्स्ट देखो y, y की टर्म है 27 और ये 5, इसको ऐड कर लो, सो यू विल गेट 32y। ठीक है, और लास्ट में आपका बचा माइनस 3y स्क्वायर माइनस 45 इक्वल्स टू 0 बी रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन। इसको बोला जाता है बेटा कंबाइंड इक्वेशन। ऐसे निकाले जाते हैं कंबाइंड इक्वेशन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है, आई होप आप उसको कंप्लीट कर लोगे। ओके बच्चों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से बेटा इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।